Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So everyone, today we will be not discussing the chapters, we will not be reading any chapters, but today we will be, from today onwards, we will be discussing only the MCQs that will be coming in your board exams or the question patterns of your examinations, okay? So we will revise the question or MCQ questions chapter wise according to the syllabus of your first term. So today we will be discussing some questions from chapter 1 of history, that is rise of nationalism in Europe. So as you all know, all the questions will be based on MCQs, but it won't be that easy like MCQs. You will have various types of MCQs, like you will be given case studies and all, through which you have to do assertion and reason. Is that clear? So we'll do that. We'll just look samples one by one. So there is the first question. Don't get confused with the question, okay? No need of remembering question numbers, because at the same time there are some questions which I haven't marked any numbers on them, okay? Who among the following was the founder of Young Europe Underground Secret Society in Bern? So it is Giuseppe Mazzini. So this is the right answer. So remember that when he was exiled Liguria, in Italy, Liguria में उन्होंने क्या किया था? He tried to do a revolution शुरुआत में. I think you all remember that. तो उस समय उनको क्या किया गया? वहां के गवर्नमेंट ने, मोनार्क ने, he was exiled, that means he was thrown away from the country. So when he was in Bern, यानी कि Bern is the capital of Switzerland, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था? एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था, यंग यूरोप. इज दैट क्लियर? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जोल्वेरिन formed. Identify the correct statement with regard to the Zollverein. Form the correct statement. Okay. ये चारों स्टेटमेंट में से जोल्वेरिन का यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट या आइडिया क्या है? So anyone like it was a coalition of Prussian states formed to manage political alliances. It was to bind the procedure politically into an association. It was a custom union at the initiative of Prussia. It helped to awaken the rise the nationalism sentiment in Europe. B. Whenever I'll tell. Okay, the main motive may be all the things. Okay, मैं यहाँ बता रहा हूँ. Answer सुनो. Most of you will be confused. Okay, जोल्वेरिन जो बना था उसने नेशनल सेंटिमेंट एक प्रकार से लाने का कोशिश किया था. एक प्रकार से वो यूनिफाई कर रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे. बट इन व्हाट स्पीयर? वो पॉलिटिकली नहीं कर रहे थे बेटा. वो लोग पॉलिटिकली नहीं कर रहे थे, बट दे वर डूइंग इट इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि कस्टम यूनियन थे ये. रिमेंबर दैट इट वाज ए कस्टम यूनियन. हो सकता है कि ये तीनों पॉइंट्स भी किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैच करे जोल्वेरिन के साथ, बट जोल्वेरिन, रिमेंबर दैट इट वाज ऑन द इकोनॉमिक स्पीयर. तो इकोनॉमिक स्पीयर में होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? इट वाज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया. इज दैट क्लियर? So now I have given a case study. Everyone read this. The model of, I'll read it. The model of nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. जो नेशन या नेशन स्टेट का जो आइडिया बना था, उनमें से एक स्टडी है जिसमें स्कॉलर्स ने क्या किया है? थोड़ा बहस किया है, कुछ अपने राय दिया है. वो कौन सा केस है? वो ग्रेट ब्रिटेन का केस है. हम लोग ने देखे यू नेशनलिज्म किस में देखे? नेशन स्टेट. जर्मनी बना है, इटली बना है, यस, फ्रांस बना है, लेकिन हमेशा यहां पे एक चर्चे में आता है नेशन स्टेट के मामले में, वो है ग्रेट ब्रिटेन. अब in Britain the formation of the nation state was not the result of
सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन, ये बात रखना, ये बात ध्यान से याद रखना। ब्रिटेन जो बना था, यूनिफाइड ब्रिटेन या ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो बना था बेटा, वो ना तो फ्रांस की तरीके से बना है, ना जर्मनी की तरीके से बना है, ठीक है, ना इटली की जैसे यूनिफाई करना पड़ा है जबरदस्ती लोगों को, मतलब एकजुट नेशनलिज्म सेंटिमेंट लगाना पड़ा है। ये एक प्रकार से रेवोल्यूशन भी नहीं है जो फ्रांस में आए थे, एक अपहीवल लोगों का जो आगे बढ़ के देश का मांग करना, ऐसा भी नहीं है। तो ये अलग केस है। इसमें क्या होता है, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, यानी कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन यानी कि पहले से ही सोचा गया, ये क्या था, एक प्रोसेस था कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उसको बनाने का ये एक पहले से क्या था, प्रोसेस था। केवल इंग्लिश नहीं है यूनाइटेड किंगडम में, याद रखना। ग्रेट ब्रिटेन जो हम लोग बोलते हैं, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है, उसमें केवल इंग्लिश नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, उसमें अदर कंट्रीज भी है। तो वो लोग कैसे आया हम लोग देखते हैं। जैसे कि अब अदर में देखे तो वो सारे लोगों का कल्चरल एथनिक ग्रुप एक था, लेकिन इंग्लैंड अलग हो गए, वेल्स अलग हो गए, ये हम लोग देखेंगे। देखो, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज वहां पे क्या था, पीपल हु इन विद ब्रिटिश इसलिए वेर एथनिक वंस, जैसे कि एथनिक समझ रहे हो, हम लोग पावर शेयरिंग में भी पढ़े हैं, जैसे कि इंग्लिश लोग भी थे, वेल्स भी थे यानी कि पीपल ऑफ वेल्स, स्कॉटलैंड के, एंड आयरिश पीपल क्या थे, आयरलैंड के। तो देखो बेटा, अब व्हेन वी टॉक अबाउट इटली, इटली का अपना कल्चर है, अपना भाषा है, ठीक है, जर्मन्स का अपना है, ठीक है, बेल्जियम में हम लोग पावर शेयरिंग देखे तो कुछ थोड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप वहां पे इथनिक कंपोजिशन अलग अलग है, लेकिन एक प्रकार से ऐसा ही है, आयरिश भी अलग है, स्कॉट भी अलग है, वेल्स भी अलग है, और इंग्लिश भी अलग है। तो ये चार कैसे एक हुआ, अब बात यहां पे आ रहा है ना, ये चार को यूनिफाई किया है ना ब्रिटेन ने, अब कैसे। ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये भी अलग बात है। देखो, अपना कल्चर था ये चारों का और अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी था। बट जैसे इंग्लिश नेशन धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रीव इन वेल्थ, पैसा कमाने लगे, सबको बताया कैसे पैसा कमाया है, सबको बताया कैसे पैसा कमाया है, कॉलोनाइजेशन, इंपोर्टेंस में भी आए, पावर में भी आए, और इसीलिए इट वाज एबल टू एक्सटेंड हिज इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। उसके चारों ओर, जो ब्रिटिश के चारों ओर तो आइलैंड नेशंस है, तो ये सब जैसे पावर में आए, इंपोर्टेंस में आए, अमीर होने लगे, तो अपने चारों ओर के आइलैंड्स में क्या करना शुरू कर दिए, अपना इन्फ्लुएंस लगाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, फिर इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करता है, विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। अब इंग्लिश ने क्या किया, पार्लियामेंट ने पूरी तरीके से मोनार्की से क्या किया, पावर छीन लिया 1688 में, एट द एंड ऑफ द प्रोटेक्टोरेट कॉन्फ्लिक्ट, विच वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच had nation state the England at its center came to be forged। तो देखो 1688 में क्या किया, वो लोग ने पावर सीज किया, और यही एक क्या हुआ, एक मतलब मान लो एक हथियार बन गया सबको क्या करने का, यूनाइट करने का। कैसे, क्योंकि अब ब्रिटिश मोनार्की क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और पावर पे कौन आ गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट आ गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करने लगे, अब देश चलाना शुरू कर दिए, और एज अ रिजल्ट वो लोग ने अब क्या करता है, सारे लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इंग्लैंड से क्या बन गया ये लोग, जब स्कॉटलैंड आ गए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड सफल रहा कि अपना इंफ्लुएंस किसके ऊपर डालने के लिए, स्कॉटलैंड के ऊपर डालने के लिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट हेंसफोर्थ धीरे धीरे डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। अब बात यहां पे आता है, स्कॉटलैंड को भी जोड़ दिए, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें केवल कौन डोमिनेट कर रहे थे, इंग्लिश पीपल, मतलब अदर एथनिक कंपोजिशन वाले लोगों को अधिकार नहीं मिले थे। तो तुम लोग ने ये समझे, पढ़े। अब यही से सवाल आएंगे, इसी जो पैराग्राफ है इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। when was the British
नेशन, ओके यहां पे होगा व्हेन इज द ब्रिटिश नेशन सेड टू बी फॉर्म्ड। तुम लोग ने पढ़े थे, व्हेन इज द ब्रिटिश नेशन सेड टू बी फॉर्म्ड इन 1688 में तो वो लोग ने मोनार्की से पावर सीज कर लिया था पार्लियामेंट ने। आफ्टर 18th सेंचुरी, बिफोर 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था, तो इसका मतलब आफ्टर 18th सेंचुरी, क्योंकि 1818 में नहीं हुआ है, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बना है, तो आंसर ये रहेगा आफ्टर 18th सेंचुरी। तो उसी में से आएगा फ्रॉम हुम डिड द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर। मोनार्की, सिंपल है, मोनार्की से पावर सीज किया था, क्योंकि वहां पे भी किंग्स एंड क्वींस रूल कर रहे थे। तुम लोग को पता होना चाहिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे इंडिया में, वो लोगों को क्वीन एलिजाबेथ ने क्या दिया था, चार्टर दिया था ना ईस्ट इंडिया कंपनी में आने का। तो इसका मतलब वहां पे कौन रूल कर रहा था, मोनार्क रूल कर रहे थे, मोनार्क से ही पावर सीज किया गया। सिंपल सी बात है, पावर सीज किया गया तो मोनार्क से ही किया गया यूरोप में। तो सबको पता है कि वहां पे क्या था, डायनेस्टीज थे। Which of these is a feature of ethnic groups in Britain? इनमें से कौन सा फीचर है जो सही है, जो हम लोग ने पैराग्राफ पढ़े हैं उस पैराग्राफ के, या हम लोग ने जो केस अभी पढ़े हैं ब्रिटेन का, तो उस केस के हिसाब से इनमें से कौन सा सही है। तो एक बार केस पढ़ सकते हो तुम लोग, एक बार देख सकते हो, यू कैन रीड द केस। All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. So यहां पे क्या होगा, all of these ethnic groups had own cultural and political traditions. C. Yes? Yes. Which of these resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain? 4. This one? Okay. 1707. अब 1770 is wrong, okay? Okay, now this is assertion and reason, okay? First read this. In the areas conquered by Napoleon. सबसे पहले assertion का मतलब A है, reason का मतलब R है। In the areas conquered by Napoleon, the initial enthusiasm soon turned to hostility. इसका मतलब क्या है, जो शुरुआत में लोगों को जो नेपोलियन ने क्या किया था, जब कंकर किया था, दे वर हैप्पी ना, कि दे वर हैप्पी बिकॉज वो लोग को लगा कि नेपोलियन क्या ला रहा है, चेंजेस ला रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, जो अच्छा चीज में था वो क्या हो गया, बददुआ में बदलना शुरू हो गया। क्यों, अब पीपल को लगने लगा कि ये लोग नहीं, नेपोलियन क्या कर रहा है, हाई टैक्सेस इंपोज कर रहा है, जबरदस्ती में आर्मी में लगाया था, तो ये हॉस्टिलिटी हो जाएगा। तो रीजन, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी कि कहने का मतलब यही है, जो नेपोलियन ने जो नया एडमिनिस्ट्रेशन लाया था वो क्या पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ 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 गया था, नहीं गया था। क्यों, इधर टैक्स बढ़ा रहे हैं, इधर थोड़ा छूट दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि ऐसा नहीं होगा ना कि जो दोगे वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो वहां के लोगों को क्या लगा कि पहले तो ये हॉस्टिलिटी वाला बात सही है, ये वाला भी सही है। यानी कि जो नेपोलियन सोच रहे थे वो तो उन्होंने किया, लेकिन लोगों के लिए वो सही नहीं था। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहने का मतलब यह है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। या बी, बोथ ए एंड आर सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। या सी में लिखा गया है असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, रॉन्ग है। असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। कौन सा सही है इसमें?
देखो अब मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों को। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। कैसे बता दे? इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। मतलब जो लोग पहले खुश थे नेपोलियन आने के बाद, वो लोग फिर क्या हो गया? अनहैप्पी। किसकी वजह से? नेपोलियन का क्या था? नए रिफॉर्म्स की वजह से। तो यही है, जो नए रिफॉर्म्स था, अरेंजमेंट्स, वो हाथों में हाथ देके पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं गए। वो लोग को कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिला था, लेकिन जो नया एडमिनिस्ट्रेशन था वो साथ साथ नहीं चला। पॉलिटिकल फ्रीडम कुछ मिल रहा था, बट अदर रिफॉर्म्स क्या नहीं कर रहे थे? काम नहीं कर रहे थे। इसलिए ना हॉस्टिलिटी आया था। समझे बात को? हॉस्टिलिटी क्यों आया था? क्योंकि लोग पहले नेपोलियन का ये जो अरेंजमेंट थे इससे खुश थे, लेकिन जैसे सोचा था वैसे ही गया, वहां के लोगों को नहीं गया। पहले नेपोलियन क्या था कि वो लोगों को लगा था कि नेपोलियन आएंगे तो कुछ बदलाव आएंगे, तो नए बदलाव तो आया, लेकिन वो साथ साथ नहीं चला। नए बदलाव तो सही थे, लेकिन एट द सेम टाइम नए रिफॉर्म्स ऐसे आ गए थे जो लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा था? भारी पड़ रहा था। जैसे कि इंक्रीज ऑफ टैक्सेस एंड फोर्सिंग देम टू जॉइन दी फ्रेंच आर्मी। तो ये क्या था? पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म आ रहा था उसके विरुद्ध जा रहा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आता आया है यहां पे, वो साथ साथ काम नहीं किया। कुछ दिया है तो कुछ वापस लिया है, दोनों साथ साथ बराबरी से नहीं चला। तो यही हुआ ना, इसी के वजह से ही ये हुआ था, हॉस्टिलिटी आया था। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू who visualized in his painting a society made up of democratic and social republic. किस कंट्री के थे? Don't get carried away. He was not French. I am telling you. He was a Swiss artist. Okay? Don't get. अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रहे हैं. He was a Swiss artist. Which of the following countries did not attend the Congress of Vienna? वियना में जो कांग्रेस हुआ था, कौन सा देश नहीं आया था? स्विट्जरलैंड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, हम लोग पढ़े लिबरल नेशनलिज्म किस लिए, किसके मतलब वो क्या था? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड शेरिकल प्रिविलेजेस, फ्रीडम फॉर ओनली मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। ए, very good. A. What happened to Poland at the end of 18th century? Which of the following answers is correct? Poland achieved independence at the end of 18th century. Poland came totally under the control of Russia and became part of Russia. Poland became the part of East Germany. Poland was partitioned at the end of 18th century by three great powers: Russia, Prussia and Austria. Number D. Poland was partitioned at the end of 18th century by three great powers: Russia, Prussia and Austria. तीनों ने क्या कर दिया? अपना अपना पार्टीशन कर दिए. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in Prussian victory. The allegory of German nation who wears a crown of oak leaves was Germania. Okay, good. Germania. These are very simple. Now this will be easy to understand. But some questions like these questions will be difficulty level will be hard. So इसलिए तुम लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ के जाना पड़ेंगे. अब भाई MCQ है तो तुम लोग ये मत सोचो कि MCQ बहुत आसान होंगे. एक चैप्टर में से 1000 MCQ बन सकते हैं और ये चैप्टर बहुत बड़ा है. Okay, Napoleon invaded Italy in you can go with the answer 1790s.
1719 90s बोले हैं। अब 90s मतलब 90 से लेके 99 के बीच में, समझे? Who said when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? Duke Metternich. He was an Austrian chancellor. Good. What does Das Volk stand for? What does Das Volk stand for? Common people. Is that clear? Remember this, common people. ओके, यहां पे एक चीज बताऊंगा मैं कि अब यहां पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा अलग बनाया है। यहां पे ऑप्शंस भी मिलेंगे। एमसीक्यू है तो तुमको ऑप्शंस जरूर मिलेंगे। यहां पे मैंने एमसीक्यूज में ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो तुम लोग सोच लेना। दिस पिक्चर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 एंड आंसर द क्वेश्चंस एट दैट फॉलोज। आइडेंटिफाई द अबव फिगर। ये कौन सा फिगर है? जर्मेनिया है। नेम द आर्टिस्ट हु पेंटेड इट। What is the significance of this image? So now, this will be your homework. Study this picture carefully and write the answers. These questions will be sent on your assignment. Okay? Italy? Which question? Okay, 1797. Okay, 1797. That means it will be okay. This, if this is the correct option, then it is correct. 1790s इसलिए दिए हैं हम, 90 के दशक में हुआ था 1790s। अब यहाँ पे एस नहीं होता तो ये गलत होता। 1790s दिया है, 1790s के ईयर में किया गया था। इज दैट क्लियर? बोथ आर राइट। एक प्रकार बोथ आर राइट, बट we'll remove this s, okay, for example. So now it will be clear. Okay, so tomorrow we will be discussing the part 2 from this chapter. Again, more MCQs, and tomorrow we will be doing that case study type questions. Okay, only case study. At least 4 or 5 case study हम लोग देखेंगे इस chapter का. Thank you and have a wonderful day.